السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، کل کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اہم ایک سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا اس وقت ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز تو دی تھی. آج ذرا اس پہ تبصرہ بھی کریں گے، ذرا آگے بھی بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی کراچی کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. بالکل شفاعت، ایک ایسا شہر کہ جو پوری ملک کی اکانومی چلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ شہر کس طریقے سے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا اب یہ جانتی ہے. اور اس حوالے سے اب کے الیکٹرک کے حکام جو ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ کراچی میں بجلی دن بدن مہنگی تو ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ میں نایاب بھی ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور ہم نے دیکھا کل لاہور میں بارش ہوئی، پرسوں لاہور میں بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ پورا ایسا لگا لاہور ہی ڈوب گیا اور لوگوں کو وہاں پہ کشتیاں خرید لینی چاہیے. جی، یہ آپ ابھی کمنٹ کر دیے نا اب آپ دیکھیں کہ وہ جو واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے بھی ان کو غصہ آ جاتا ہے. جیسے آپ کراچی میں کہیں گے کراچی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کراچی کے والے سے بات بھی کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے ان کو بڑا زیادہ. آپ کہیں گے جی کراچی میں بارش ہوئی اور اپنا لاہور میں بارش ہوئی اور لاہور ڈوب گیا. لیکن جی لاہور میں بارشوں کا اسپیل بڑا طویل ہونے والا ہے. یہ اسپیل کیا کرے گا، کب تک رہے گا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر سب سے پہلے حسب عادت حسب روایت ٹاپ سٹوریز. کراچی کے مسائل پر سپریم کورٹ ایک بار پھر سخت برہم. چیف جسٹس نے سندھ اور مقامی حکومتوں کو شہر دشمن قرار دے دیا. وسیم اختر کو کہا اگر اختیار نہیں تو شہر کی جان چھوڑ دو کہ الیکٹرک حکام بھی آج پھر طرف. جی تو ابھی آپ نے جانی ٹاپ سٹوریز اور باخبر سویرا کے آغاز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس اہم سماعت کے حوالے سے جو کہ کل ہوئی سپریم کورٹ رجسٹری میں کراچی کے حوالے سے. سپریم کورٹ رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کراچی کے معاملات پر کل سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی کراچی سے دشمنی ہے اور لوکل باڈی بھی کراچی کی دشمن ہے. پورے شہر میں کچرا اور گندگی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ صرف ہیلی کاپٹر پر دورہ کر کے آ جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. میئر کراچی سے سوال کیا آپ کی عہدے کی مدت کب مکمل ہو رہی ہے؟ وسیم اختر صاحب نے جواب دیا 28 اگست کو. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے جاؤ جان چھوڑو شہر کی، اختیارات نہیں ہیں تو گھر جاؤ. آج کراچی کے حوالے سے دوبارہ بات ہونی ہے اور خاص طور پہ کراچی کے بجلی کے مسائل، کراچی کے بل بورڈز کے مسائل اور سب سے امپورٹنٹ سرکولر ریلوے جس کی اب جو ہے ایگزیکیوشن کا ٹائم بھی دے دیا گیا ہے اور کل یہ بھی کہا گیا ریمارکس میں کہ سرکولر ریلوے اسی سال چلنی ہے. پیپلز پارٹی رہنما عاجز دھامرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دھامرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سپریم کورٹ کے میں جو کراچی کے مسائل پر معاملہ ہوا اس میں چیف جسٹس بہت سخت ریمارکس دیے. انہوں نے کافی وہ غصے میں نظر آئے، سندھ حکومت کے حوالے سے بڑے نالا نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملات جن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے چیف جسٹس نے، اب ان معاملات پہ سندھ حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کروا سکتی ہے، وہ سالبل ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل باڈیز کے جو ادارے ہیں کے ایم سی اور ڈی ایم سیز ان کو آن بورڈ لے کے خاص طور پر جو نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جو ہے ہم نے شروع کیا ہوا تھا. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چھوٹے نالے ہیں وہ ڈومین میں آتے ہیں ڈی ایم سی کے، جو بڑے نالے ہیں وہ کے ایم سی کے ڈومین میں آتے ہیں. اور خود کل بھی آپ نے میئر کی جب بات سنی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ ورلڈ بینک نے کوئی اربوں روپے سندھ گورنمنٹ کو دے دیے ہیں، تو وہ بالکل صریحاً غلط ہے. کوئی 1 روپیہ بھی ریلیز نہیں ہوا. میں پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام سے یہ مخاطب ہوں کہ اس کے ساتھ ان پیسے ریلیز نہ ہونے کے باوجود سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نالوں کی صفائی کا کام کر رہی ہے. ادروائز جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ ایشو آ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے اور پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ جمع ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ 3 ڈسٹرکٹ کے اندر تو ہے، 3 ڈسٹرکٹ کے اندر بھی نہیں ہے. آپ ملیر کی سڑکیں ابھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ملیر کے اندر ہے، ایسٹ کے اندر ہے، ساؤتھ کے اندر ہے، کورنگی کے اندر نہیں ہے، ویسٹ کے اندر نہیں ہے، سینٹرل کے اندر نہیں ہے. تو وہاں آپ جہاں جہاں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو صفائی ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری کمیٹیز بنائی ہوئی تھی
दिन रात उनकी लुक आफ्टर किया है, मिनिस्टर ने लुक आफ्टर किया, और आप देख सकते हैं कि कराची में सफाई का हालत बेहतर है। बिल्कुल, ये जो कराची में सफाई का हाल आपने बात की है तो चीफ जस्टिस इस पे भी काफ़ी सारा बरहम दिखाई दिए। साथ में जो कराची की सड़कों के हालात हैं वो भी सबके सामने हैं। सड़कें इतनी टूट फूट का शिकार हैं। खुद चीफ जस्टिस की जो अपनी गाड़ी है उनका टायर भी गटर में चला गया था। तो मुझे बताएं ये फिर कौन सही करेगा? ये तमाम तो सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? देखें, सूबाई हुकूमत सिर्फ एक सूबाई हुकूमत नहीं है। कराची एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं इसको, मगर जहाँ पर तनकीद का एक हिस्सा जो आता है वो सिर्फ बांटा नहीं जाता, वो सूबाई हुकूमत के ऊपर आता है। मिसाल के तौर पर 3 टियर्स गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट है। तो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट क्या कह रही है वहाँ पे सवाल होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट क्या कह रही है वहाँ पे सवाल होना चाहिए। और हालिया बारिशों में आपको कहीं भी फेडरल के जो मिनिस्टर साहिबान होते हैं जो कोविड के हवाले से तो सूबाई हुकूमत पे तनकीद करते हैं, मगर वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आए। और कराची के अंदर कौन नहीं जानता कि केपीटी भी है, रेलवे भी है, कैंटोनमेंट एरिया भी हैं, डीएचए भी है। तो ये 60% कराची का जो एरिया होता है वो इन इदारों के ऊपर मुश्तमिल होता है। वहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार अकेली की नहीं होते हैं, मगर वहाँ जब पानी जमा होता है तो वो भी तनकीद का सामना सूबाई हुकूमत को करना पड़ रहा है। तो इसलिए सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से पूरी कर रही है। हम कह रहे हैं कि तमाम इदारों को मिल के ये सारा काम करना मोस्ट है। इम्पॉर्टेंटली धामरा साहब, सर्कुलर रेलवे के हवाले से चीफ जस्टिस ने कल कहा कि जी ये इसी साल चलनी है, इसी साल सर्कुलर रेलवे चलनी है। उस हवाले से बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ होने जा रहा है? देखें, इस पे बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने, जब जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब ने, इस पे बड़ा सख्त आर्डर किया था और अब भी उनकी है। और हम सब की ये विश है कि सर्कुलर रेलवे जो है वो पूरी होनी चाहिए। जो सूबाई हुकूमत का काम था वो तकरीबन कंप्लीट है और फेडरल की तरफ से जो काम है वो रुका हुआ है, क्योंकि ग्रीन लाइन की इसमें जो बस का रूट था वो इस बीच में आ रहा था। बाकी तकरीबन जो ट्रैक है वो सूबाई हुकूमत ने कंप्लीट किया हुआ है। एक पुलें बननी हैं, वो एक इशू रहता है। तो फेडरल अपनी जिम्मेदारी जो है वो अभी तक पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए फेडरल को फिलफोर सूबे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सूबा बिल्कुल तैयार है। तो ये जो आपका सवाल है कि सूबाई हुकूमत वफाक के साथ मिलकर क्या काम करेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वफाक को सूबाई हुकूमत के साथ काम करने की ज़रूरत है, उसको सीरियस होने की ज़रूरत है। वो आए मिल बैठ के, जो वफाक का काम अभी रेलवे डिपार्टमेंट का रहता है वो आके काम करें और सियासत ना करें और बैठ के टीवी टॉक शोज में सिर्फ तनकीद ना करें, और अपने जो हिस्से का काम है वो खुद करने के बजाय सूबाई हुकूमत पे तनकीद ना करें। तो सर्कुलर रेलवे जो है वो नीड है, हम सबकी है, उस पर सूबाई हुकूमत ने अपना काम किया हुआ है। फेडरल अपना काम करें। ये जैसे आपने बताया, मेरा भी मुमकिन होगा कि पूरे का पूरा कराची मैनेज हो सके। 60% कराची का इलाका वफाकी इदारों के ज़ेर बंदोबस्त आता है, लेकिन वो इदारे जो कि डीएमसीज के, केएमसीज के और जो कराची की म्यूनसिपैलिटीज़ के पास आते हैं, उन इदारों में भी काम की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं वहाँ है। भी काम की अशद ज़रूरत है। खैर, इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम जमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। खुर्रम साहब बताएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कराची के मसाइल पर काफ़ी ज़्यादा बरहम दिखाई दे रही थी। अभी आजिज़ धामरा साहब से बात भी हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि बजाय कि सियासत करने के मिल के काम करना चाहिए, बजाय कि सियासी बयान दिया जाए तो मिल के काम करना चाहिए। क्यों नहीं कराची का मसला हल होता? अच्छा देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो बरहमी अदालतों की और हमारे ऑनरेबल जजेस की हम पिछले 12 साल से देख रहे हैं, इस बरहमी का फ़ायदा क्या है? अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों तो जो उनकी बरहमी है उसका कोई रिज़ल्ट आना चाहिए ना। कि जैसे कि तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट का एक बिल जमा कराया हुआ है, वो जो है यहाँ पे सिंध असेंबली में एक्सेप्ट नहीं होता है। या तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और उनसे पूछें कि ऐसा बिल क्यों नहीं जमा कराया जाता है जिसके ज़रिए जो है आवाम को डिलीवरी मिल सके, आवाम को वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मेयर साहब ने सही फरमाया, अगर कोई और दूसरा मेयर भी आ जाएगा कराची का तो मसाइल हल नहीं होंगे। जैसे कि फरमाते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है नालों के ऊपर, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके अंडर आती है। इसी तरीके से अगर स्टॉर्म ड्रेन का जितना भी निज़ाम है उसके अंदर सारा सीवरेज अटैच कर दिया गया है, उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन भी चीफ मिनिस्टर साहब है, उनके अंडर आता है सिंध गवर्नमेंट। अब शहर भर का जो कचरा नालों के अंदर आता है, शहर में सफाई नहीं होती है, उसके भी जिम्मेदार वो हैं सर। तहरीक इंसाफ की जो कराची की जो भी जितनी भी लीडरशिप है वो कराची के हवाले से बात करती है,
لیکن تحریک انصاف کی ہی اتحادی ہے MQM، جس کے پاس کراچی میں 4 DMCs ہیں. کبھی کسی DMC کے چیئرمین نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اختیارات ہوتے بھی ہیں، وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کوئی بات کرے گی؟ دیکھیں سر، ہم ایک بل جمع کرا چکے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اسے جو ہے ٹیبل کرے گی، لے کر آئے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. دیکھیں میرا تو ہمیشہ سے کہنا ہے، 7 سال میں نے اس سیاسی جماعت کو آزمایا ہے اور میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے سندھ میں عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا سر کہ کراچی سے تو ان کو ووٹ نہیں ملا. ہم مان لیتے ہیں کہ کراچی سے دشمنی ہے، لیکن لاڑکانہ سے کیا دشمنی ہے، سیون سے کیا دشمنی ہے، سکھر سے کیا دشمنی، ناصر شاہ کی جو وہاں کے لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں. تو نواب شاہ سے جہاں سے زرداری صاحب جیتے ہیں وہاں سے ان کی کیا دشمنی ہے. یہ سندھ میں عوام کے مسائل حل کرنا نہیں چاہتے. بہتر پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں، ان کی طرف یہ سوال لے کر چلتے ہیں. نذیر صاحب، جو کل سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے بڑا انیوژل ہے، یا جیسے خرم شیر زمان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا اس کا کوئی فائدہ؟ بات یہ ہے کہ عدالتیں قابل احترام ہیں، جج صاحبان انتہائی قابل احترام ہیں، اور ہمیں ہر لحاظ سے کسی بھی صورت میں ان کا احترام کرنا ہے اور ان کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشنز دی ہیں، آبزرویشنز فیصلے نہیں ہیں. جو آبزرویشنز دی ہیں ان کے بارے میں بھی تمام اداروں کو، تمام متعلقہ حکومتوں کو، چاہے وہ صوبائی ہوں، چاہے وفاقی ہوں، چاہے وہ یہاں پر کارپوریشنز ہوں یا DMCs ہوں، ان سب کو اس پر عمل کرنا ہے. اب ہم اگر ایک ایک چیز لیں، جو ہمارا سرکولر ریلوے ہے، تو سرکولر ریلوے میں ریلوے کی پوری زمینوں پر بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو راستہ میں آپ وہاں سے شروع کریں نا، جہاں سے ریلوے کراچی یونیورسٹی کی طرف اور گیلانی اسٹیشن کی طرف اور لیاقت آباد کی طرف اور اورنگی اسٹیشن کی طرف، نارتھ ناظم آباد کی طرف جاتی تھی اور سائڈ کی طرف جاتی تھی، یہ پوری کی پوری آپ راستے کو روٹ تو وزٹ تو کریں کہ کس کس کے قبضے ہیں اور کس کس نے یہاں پر جو ہے وہ انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ کہ کون آ کر ان کو صاف کرے گا. اگر شروع کریں آپ وہاں سے، ڈگ روڈ سے یہ نکلتی تھی اور اندر سے مڑ جاتی تھی، آپ شروع کر لیں نا یہاں سے. کوئی چینل جا کر اس کو سروے نہ کرے کہ کس کس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کون کون اس کا لینڈ اونر ہے، کون جائے گا یہاں خالی کرانے کے لیے، کس کس کی وہ ہوگی، کون اسٹیک لے گا اس بات کا کہ اس کو وہ خالی کرانے کے لیے جائے. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں ایک اینٹی انکروچمنٹ بنائیں کہ جس نے ریلوے کی پورے ٹریک پر قبضہ کیا ہوا ہے اس قبضے کو خالی کرائیں. پھر کیا ہوا کہ ہم نے یہ پورے کے پورے تمام جہاں ریلوے ٹریکس تھی ان کے اوپر ایک پورا فلائی اوور بنا دیا تھا. بلا شبہ لغائی صاحب، یہ جو انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب ہم سیاسی حکمرانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس انکروچمنٹ کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا جو کہ کل سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب نے اتنی برہمی کا اظہار کیا ہے اور نوٹسز لیے ہیں اسپیسیفکلی، چاہے وہ انکروچمنٹ ہو، چاہے وہ کچرا ہو، چاہے وہ بل بورڈز ہوں. کوئی آؤٹ کم آپ کو اچھا کراچی کے لیے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں بھی ڈیلیور کریں، ان کو کرنا چاہیے، لیکن اصل مسئلے کو تو حل کریں گے نا. آپ ایک تو بل بورڈ ہٹانے کا کہا گیا، اس کو فوراً ہٹا دینا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ حکیم فلاں کا لگا ہوا ہے اور نجومی فلاں کا لگا ہوا ہے اور جادوگر فلاں کا لگا ہوا ہے، یہ سارے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہ کون سی چیز ہے؟ کون سی پروڈکٹس جو ہیں؟ اچھا پروڈکٹ سے کہا بھی وہ اپنے پروڈکٹ کو اور طریقے سے ایڈورٹائز کریں گے. شہروں کے اوپر انہوں نے وہ لوہے کے بل بورڈ توڑنے ہیں کیا؟ لوگوں کے سر پھاڑنے ہیں یا گاڑیاں توڑنی ہیں انہوں نے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی نذیر صاحب کہ بہت ہو گیا ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم، اور مل بیٹھ کے مسئلے کا حل کرنا اور کراچی کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ کس نے انکروچمنٹ کیا ہے، کس کا اس میں انٹرسٹ ہے. یہ تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں آئیڈینٹیفائی ہونا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جی. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خرم شیر زمان ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے کل سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں ہونے والی اس مقدمے، اس پیشی کی جس میں کل کراچی کے معاملات ڈسکس ہوئے. اہم خبر شامل بالکل جو بات کراچی کے لیے اچھا ہو گیا، پشاور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ شیئر کرتے چلیں کہ 14 اگست یعنی کہ یوم آزادی سے ایک دن پہلے BRT کا ہونے جا رہا ہے افتتاح، جو کہ وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے. اور اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. لیکن
ایک اچھی خبر جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وہ یہ کہ بی آر ٹی پشاور کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان بھی موجود ہوں گے اور وزیر اعظم عمران خان خود 13 اگست کو بی آر ٹی کا افتتاح کریں گے. فائنلی 6 ڈیڈ لائنز کے بعد بی آر ٹی کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. یہ پہلے ہو جاتا لیکن کووڈ کی وجہ سے جو معاملات تھے وہ اس طرح سے سیٹل نہیں ہو پائے. بی آر ٹی کا فائنلی 13 اگست کو افتتاح ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے. یہ شفاعت بلا شبہ بہت اچھی خبر ہے پشاور کے رہنے والے لوگوں کے لیے کیونکہ بہت عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا کہ بی آر ٹی کا منصوبہ جو ہے یہ کب مکمل ہوگا اور یہ کب جو ہے لوگوں کے لیے جو بی آر ٹی کا منصوبہ آپریشنل ہو جائے گا. اب سے کچھ دنوں پہلے ہماری بات بھی ہوئی تھی. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے, کامران بنگر صاحب موجود تھے اور ان سے بھی جو ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بہت جلدی ہم اس حوالے سے جو اپنے ناظرین کے ساتھ پشاور کے لوگوں کے ساتھ اچھی خبر شیئر کریں گے. اور اب اچھی خبر فائنلی آ گئی ہے کہ 14 اگست سے پہلے ہم نے ان سے پوچھا تھا 14 اگست کو آپ کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں اس سے 14 اگست اس سے پہلے کر دیں گے. ذرا بلوچستان کی بھی طرف جو ہے ان کی بھی خبر لیتے ہیں جہاں طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور 3 دن کی بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. پاک فوج ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف ہے. جھل مکسی میں پھنسی فیملیز کو 8 گھنٹے کے آپریشن کے بعد محفوظ مقام پر پہنچایا گیا. بلوچستان میں عوام جو ہے وہ شدید پریشان ہے ان بارشوں کی وجہ سے. اور دوسری جانب اگر ہم لاہور کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر مسلسل دوسرے روز ہونے والی تیز بارش کے بعد لاہور کے کئی علاقے زیر آب آ گئے. گلبرگ سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. سڑکیں, بازار اور گلیاں بالکل تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. اور اگر ہم نشیبی علاقوں کی بات کریں تو نشیبی علاقے تو ان بارش کی وجہ سے ڈوبے ہی, جو پوش علاقے تھے شفاعت وہ بھی ان بارشوں کی وجہ سے ڈوب گئے. جی جناب, والٹن, دو موریا پل, فاروق گنج ریلوے اسٹیشن اور ملکہ علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر بار بارش ہوتی ہے اور ہر بار یہی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. شہر میں بجلی کے فیڈر ٹرپ ہونے سے 36 فیڈر ٹرپ ہونے سے پورے شہر میں بجلی غائب رہی دن بھر. اور اس وقت بھی مختلف علاقوں میں صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. کیا اس وقت کی کیا اپڈیٹ ہے, جانتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ رمضان سے. مسلسل 2 گھنٹے بارش کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جو ہے شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. نشیبی علاقے تھے وہ مکمل طور پر زیر آب آ گئے اور پوش علاقوں میں بھی جو ہے 3-3, 4-4 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. متعدد لوگوں کی جو گاڑیاں بند ہوگی, موٹر سائیکلیں بند ہوگی, وہ انہیں دھکے لگاتے ہوئے نظر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ آئندہ چند روز میں تیز اور مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ڈی سی لاہور کی جانب سے کہا گیا تھا کہ واسا کا عملہ وہ فیلڈ میں نظر آئے گا, لیکن وہ صرف تصاویر میں نظر آیا, فیلڈ میں نظر نہیں آیا. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے گزشتہ روز ہونے والی بارش کی تو ایئرپورٹ کے اطراف میں 82 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی اور شہر کے اندر جو ہے وہ 65 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تاہم یہ والٹن کا علاقہ ہے, یہاں پر اس وقت بھی ایک دن گزر جانے کے باوجود بھی اس قدر پانی کھڑا ہوا ہے کہ شہریوں کو یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا ہے. نشیبی علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا, ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. آج بھی لاہور میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور آئندہ چند روز تک بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ چند روز تک اسی طرح سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تاہم انتظامیہ جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن میں نظر آتی ہے, باقی وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی. خواجہ رمضان ہمیں لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بارشوں نے تباہی کیا مچائی ہے, لیکن شفاعت ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا ملک بھر میں اس کو لفٹ کر لیا گیا ہے. اور اس کو کرنے کے بعد اسپیسیفکلی کیونکہ سارے ریسٹورینٹس کھل گئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو کہ کئی مہینوں سے اپنے گھروں میں تھے اور ان کو تھا کہ کب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور وہ کب جا کے ریسٹورینٹس کا رخ کریں گے SOPs پہ عمل درآمد کرتے ہوئے, تو اب انہوں نے دیکھا کہ صبح صبح جو ناشتے کی جو جگہیں ہیں اسپیسیفکلی جو بڑی مشہور پوائنٹس ان پہ رش لگا دیا شفاعت. جی جناب, اور اس وقت بھی میرے خیال میں ملک کے طول و عرض میں ناشتے کی محفلیں جاری ہیں اور حلوہ پوری کھائی جا رہی ہے, چنے کھائے جا رہے ہیں. ہاں جی, نان چنے, انڈا پراٹھے کا بھی دور چل رہا ہے جناب. نان چنے کھائے جا رہے ہیں
اور یہ تمام صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے نمائندہ موجود ہے جناب ہنا دیدار, ملتان سے ہمارے نمائندے موجود ہے رانا فاروق. تو ذرا ان سے جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں, کیا رسپانس ہے لوگوں کا. ہنا پہلے آپ کی طرف آئیں گے, ذرا بتائیے کیا ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں. مجھے تو مطلب آپ جہاں کھڑی ہیں وہیں سے جو ہے نا حلوہ پوری کی خوشبو آ رہی. بالکل شفاعت, اب فائنلی کراچی والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اب کیونکہ جو گلیوں میں اور جو اسٹریٹ کھانوں کے جو شوقین افراد ہیں, صبح سویرے ناشتہ کرنے کے جو شوقین افراد ہیں, ان کی تو عید ہو گئی ہے. اس وقت ہم یہاں پر عائشہ منزل کے پاس موجود ہے جہاں پر چائے پراٹھا حلوہ پوری کافی آرڈر کیے جا رہے ہیں. شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں باہر بیٹھی ہے ناشتہ کرنے کے لیے. کوئی چائے کا آرڈر دے رہا ہے, کوئی انڈا پراٹھا منگوا رہا ہے, کوئی حلوہ پوری کھانے آیا ہے. آئیے یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسا فیل ہو رہا ہے کافی ٹائم بعد آ کر. اچھا, تو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کھانے میں مصروف ہیں لیکن انہوں نے ماسک بھی پہنا ہے. کیا کہیں گے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اب کھانا باہر ناشتہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا لگ رہا ہے. ایز یوزول تو میں کرتا نہیں ہوں ناشتہ ویسے باہر, آج کسی وجہ سے کرنا پڑ رہا تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ویسے لاک ڈاؤن میں نرمی ہے, باہر ہم ناشتہ تو کریں لیکن کیا لگتا ہے ہمیں احتیاط بھی کرنا لازمی ہے ابھی بھی؟ احتیاط کرنا تو بہت ضروری ہے. اگر ہمیں ایک مشکل سے نکلیں تو نہ کہ دوبارہ مشکل میں آ جائیں, اس کے لیے احتیاط ضروری ہے. اور ہر چیز کے لیے احتیاط تو ضروری ہے. احتیاط کرنا بہت ذرا ضروری ہے. ایک مشکل سے نکلے تو ایسا نہ ہو کہ اگر احتیاط نہ کی تو دوبارہ مشکل میں پھنس جائے. ہنا دیدار ہمارے نمائندہ کراچی میں عائشہ منزل کے باہر موجود ہیں اور ابھی جن سے بات کری تھی میرے خیال سے غالباً پراٹھا کھا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی آواز تھوڑی چینج سنائی دے رہی تھی. ذرا ملتان کا رخ کر لیتے. ملتان میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ رانا فاروق. رانا فاروق مجھے بتائے گا کہ ملتان میں اس وقت کون سے علاقے میں موجود ہیں اور کون سی ایسی ناشتے کی دکان ہے جس پہ سب سے زیادہ رش لگا ہوا ہے؟ جی بالکل, اس وقت ملتان کے ایم ڈی اے چوک کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو ناشتے کا پوائنٹ ہے وہاں پر اچھا خاصا رش ہے. ہر عمر کے لوگ یہاں پر ناشتہ نہ صرف اپنے گھروں میں خرید کر لے کر جا رہے ہیں بلکہ یہاں پر ناشتہ بھی کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں دکان کے اندر ہم جائیں کیونکہ یہاں کی جو ہے وہ پائے بہت مشہور ہیں, اس کے ساتھ ہی انڈا پراٹھا اور چنے یہاں کے بہت مشہور ہیں. یہاں پر کچھ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں, کریں گے ان لوگوں کے ساتھ بات کریں کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد 4-5 ماہ کے بعد دکانیں دوبارہ کھلی ہیں تو لوگ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے. جناب علی, یہ بتائیں اچھے خاصے عرصے کے بعد دکانیں کھلی ہیں, ناشتہ یہاں کرے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم دیکھیں لاک ڈاؤن کھلا ہے تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. آج اتنے دنوں بعد بھائی ناشتہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوگا. میں یہ چاہوں گا کہ پورا پاکستان کا لاک ڈاؤن کھل جائے اور پاکستان میں روشن ہو جائے پورا پاکستان. اچھا یہ بتائیں ناشتہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں انڈا چنے اور پراٹھے اور نان کھا رہا ہوں. اچھا, آپ نے یہاں کے پائے نہیں کھائے؟ کھائے ہیں, یہاں کے پائے بہت مشہور ہیں, یہاں کے نہاری بہت مشہور ہے. آپ ناشتہ کریں آپ. جی ہم بھی ناشتہ کرتے ہیں. جن کا کہنا ہے کہ یہاں کے پائے ہوئے, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4-5 ماہ کے بعد یہاں پر ناشتہ کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں یہ بھی بتا چلوں کہ ملتان شہر میں جتنے بھی جو ناشتے کے پوائنٹس ہیں, چھوٹے ڈھابے ہیں, چھوٹے ہوٹل ہیں, وہ کافی عرصے سے ویران پڑے تھے, سنسان پڑے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب رونقیں ملتان شہر کی بحال ہو چکی ہیں. جس بھی ناشتے کے پوائنٹ پر جائیں وہاں پر لوگ ناشتہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور ان کو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے کاروبار بھی بحال ہوں گے انشاءاللہ. چلے رانا فاروق, مجھے اب یقین ہو گیا کیونکہ انہوں نے آپ کو آفر دے دی تھی کہ آپ بھی ناشتہ کریں تو آپ ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے. ہنا دیدار بھائی اپنے لیے بھی حلوہ پوری پراٹھا بلکہ اور ہمارے لیے بھی لیتے آئے. بہت شکریہ جی. ہنا دیدار کراچی سے اور رانا فاروق ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ملتان سے موجود. ویسے شفاعت, کراچی میں تو واقعی مطلب صبح نہاری بھی کھا سکتے ہیں, انڈا پراٹھا بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت سارے ڈفرینٹ, حلوہ پوری بہت زیادہ مشہور ہے. لاہور میں جو کالی مرچ کے چنے اور کلچے بہت زیادہ مشہور ہے. میں چھوڑ کے چلا جاؤں. نہیں مجھے آپ کیا چاہ رہی ہیں, میں چھوڑ کے چلا. پشاور میں کیا چیز ناشتے کے سفر میں؟ پشاور میں جو اندرون شہر کے لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں روغنیاں صبح ناشتے میں, اور وہ روغنیاں ہوتی ہیں دیسی ملائی کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا شفاعت, یہ روغنی نان کی طرح ہوتے ہیں پراٹھے, وہ تلوں والا جو ہے نا, میں نے وہ پنڈی میں کھایا ہے, وہ بھی لال حویلی کے سامنے. بس یہ کوئی نیڑے پہنچی, مطلب 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئی. تو یہ پشاور کا کلچر ہے اور لوگ جو ہے یہ کھاتے خاص طور پہ صبح کے وقت. ایک تحصیل گنج میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ ایک بالکل برابر میں ایک ہے نکا پانچے والا, یعنی وہ پایوں کی دکان. اچھا پانچے والا. ہاں پانچے, وہ جو ہے وہ مجھے لگا ٹیلر کی دکان کا بتا رہے ہیں. وہ پشوری میں پائے کو پانچے کہتے ہیں. تو وہ جو صبح سویرے پتیلا کھلتا ہے وہ 9-10 بجے تک ختم ہوتا ہے. بس شفاعت بس اس کے بعد میں کیا خواتین میں ہم پانی پہ گزارا کرتے ہیں, بریک بنتا ہے, بریک لے لیتے ہیں. نکے پانچے والے کو ہم یاد کر رہے ہیں, پانی پی لیتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے، جس میں پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بہترین حکمت عملی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر جناب وولکن بوکرز نے کورونا سے نمٹنے کی پاکستانی حکمت عملی کو دنیا کے لیے مثال قرار دیا۔ کہتے ہیں دنیا کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھوں سے صورتحال کا مشاہدہ کر کے بہت خوشی ہوئی، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ Pakistan has been a good example for the world with its policies which handled the pandemic related policies very well, and it is one of the figures show that Pakistan has done better than many other countries in the world, and I'm happy to observe it also here with my own eyes. دوسری جانب مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کورونا کے خلاف پاکستانی پالیسیز اور طبی ماہرین کی قوم کے لیے خدمات کے معترف ہو گئے ہیں۔ CNN کے ہوسٹ فرید زکریا کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے کورونا سے نمٹنے کے لیے محنت کی اور سخت اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں کورونا کیسز میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے، اور بل گیٹس نے پاکستان میں کورونا کی صورتحال کا موازنہ یورپ سے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کراچی میں ایک وقت کورونا کیسز کی تعداد خطرناک حد پر تھی، لیکن اب صورتحال یورپ جیسی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ بھارت میں کورونا کی صورتحال ابتر ہے، بھارت میں کورونا کی صورتحال جنوبی امریکہ جیسی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جہاں پہلے سارس وائرس پھیل چکا ہے، انہیں اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر سانس کی وبا دوبارہ آئے تو کس طرح سے ٹیسٹنگ کرنی ہے، اور چونکہ امریکہ کے مقابلے میں وہ وائرس کو جلدی ٹریس کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اس لیے وہاں انسانی رابطے سے پھیلنے والی بیماری کے متاثرین کی تعداد کم ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال انہوں نے جنوبی کوریا کو یا ویتنام جیسے ممالک کو قرار دیا جہاں صحت کا بہترین نظام موجود ہے۔ ویسے میں نے بل گیٹس صاحب سے ملاقات ہوتی، میں نے پوچھنا تھا کہ وہ چپیں جو انہوں نے لگانی تھی ویکسین کے ذریعے اس کا کیا ہوا، کیونکہ وہ تو بڑے بڑے میں نے لوگوں کو سنا جو بڑے سنجیدگی سے کہتے تھے یہ بل گیٹس صاحب نے بھی خود سنا تھا، ان کو بھی انہی جو وائرل ویڈیوز کے تھرو جو واٹس ایپ پہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا تھا نا ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی کہ بھائی نہیں جانا، اپنا ٹیسٹ نہیں کرانا، یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہوتا، بھائی ہمارے خلاف سازش کی جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ جی کس طریقے سے کرونا نے تباہی مچائی۔ خیر جی، بل گیٹس نے اسپیسیفکلی جس طریقے سے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی کے صدر انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو جو پالیسی کو انڈورس کیا، اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی منزہ حسن، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ منزہ ویلکم ٹو باخبر سویرا، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا منزہ، ہم نے کل دیکھا کہ کل آپ نے اس موضوع پہ ٹویٹس بھی کافی زیادہ کی تھی، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کتنا اہم ہے کہ عالمی سطح پر بل گیٹس اتنا جیسے بڑا آدمی جب پاکستان کی اس حکمت عملی کی تعریف کرے جس سے پاکستان نے کرونا وائرس سے کو شکست دینے میں کافی کام کیا ہو؟ دیکھیں، یہ ایک ایکنالجمنٹ تھی بل گیٹس کی، جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا ویژن تھا، اسٹریٹجک جو لاک ڈاؤن تھا، یہ ان کی ایکنالجمنٹ تھی، اور اس میں میں سمجھتی ہوں نہ صرف گورنمنٹ کی بلکہ عوام کی بھی سپورٹ تھی، جس سے ہم نے اس کو گراف کو اور نیچے لے کے آیا ہے۔ سو جو پالیسی پرائم منسٹر کی اور جو ان کا ویژن تھا وہ آئی تھنک بڑا افیکٹو تھا، اور انہوں نے اس کو خود مانیٹر کیا، اور اس کو 3 مہینے کے بعد ہم نے اس کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا، اور اس وقت تقریباً فلیٹن ہو رہا ہے وہ گراف۔ اگر ہم ایس او پیز کو جو بار بار گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز رسپانسبل سٹیزنس ہمیں ان ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، جو جب تک کہ یہ بالکل ایلیمنیٹ نہیں ہو جاتا، یا جب تک اس کی ویکسین انوینٹ نہیں ہو سکتی۔ سو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پالیسی تھی اس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، آئی تھنک وہ کامیاب رہی ہے، اور انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا، جو انہوں نے بڑے اسمارٹ طریقے سے اس کو مینیج کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی ویژن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز یہ امریکہ نے 3 مہینے بعد شروع کی، فوراً احساس کیا کہ جو ہمارے ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں وہ اس لاک ڈاؤن سے کیسے سروائیو کریں گے، یعنی پرائم منسٹر کو ان کی مسلسل فکر تھی، جبکہ وہ اس عوام جنرلی پبلک جو تھی وہ گھبرا رہی تھی، لیکن وہ ان سے یہی کہتے رہے کہ ایز اے لیڈر
کہ ہم نے اس کو مینج کرنا ہے, اس پہ پینک میں نہیں آنا, اور اسپیشلی جو غریب عوام ہے ان کو کس طرح ہم نے لک آفٹر کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے احساس پروگرام لانچ کیا, جس کی وجہ سے غریب آدمی, جو عام آدمی ڈیلی ویجز والا تھا, وہ گھر میں بیٹھ سکا اور ان کو گھر بیٹھ کے 12,000 روپے ملے. اس کے علاوہ انہوں نے فوراً جو دوسرا اقدام کیا وہ تھا لوگوں کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں, جو ان کی جو بلز تھے ان کے 3 مہینے کے لیے جو کم جن کے یوٹیلیٹی بلز تھے ان کو ایگزیمشن بھی دی, ان کو سہولتیں بھی دی گئیں. اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے اسمال بزنسز کو انہوں نے جاری رکھا. سو یہ جو اقدامات کیے ہماری گورنمنٹ نے, میں سمجھتی ہوں, اور بہت تیزی سے اقدامات کیے گئے, اس کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکے. اور ایکسیپٹنس سب سے بڑی کہ ہم نے فوراً اس چیز کو سیریسلی لیا. اب آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں انیشیلی اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا, اور ہم نے اس کو ایز اے سیریس میٹر لیا, اور گورنمنٹ نے اس کو سیریسلی لیا, اور جس کے نتیجے میں ہم اس پہ اب تقریباً کنٹرول ہم نے کر لیا. اچھا منازع صاحب, لیکن ہم نے دیکھا کہ بات سر جیسے ابھی ہم گراف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ اب کم ہوگی, اور بلا شبہ جو کیسز بھی جس طرح سے پہلے اپیئر ہو رہے تھے ویسے کیسز بھی اپیئر نہیں ہو رہے. لیکن پچھلے دنوں جیسے ٹیسٹنگ بھی کم ہو گئی تھی تو ناقدین بھی کہہ رہے تھے کہ کم ٹیسٹنگ کی وجہ سے پاکستان میں کورونا کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا ہے. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے ٹیسٹنگ انیشلی بھی کم تھی کیونکہ ہمارے پاس کٹس نہیں تھی. اس وقت ہمارے پاس کٹس نہیں تھیں, شروع میں ہمارے پاس اتنی کٹس موجود نہیں تھی کہ ہم اس کو رینڈملی کر سکتے. لیکن اب ہمارے پاس آئی تھنک وی ہیو سفیشینٹ کٹس, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اب اس کے لیے. اور اگر ٹیسٹنگ نہ بھی ہو, لیکن آپ کے پاس ایک جو ہاسپٹلس میں کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, جو بھی کرونا سے افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. شروع میں اگر وہ اس لیول کا کرونا ہو تو ان کو ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے. سو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے کیسز رجسٹر ہاسپٹلس میں بھی ہو رہے ہیں. سو رینڈم ابھی بھی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جی. منزہ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, بتا رہی تھیں کہ جو ایکنالج کیا گیا ہے گلوبلی اس میں جو لیڈرشپ کا ویژن ہے وہ بڑا کلیئر تھا, لیکن اگر آن گراؤنڈ بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کا بیہیویئر پہلے بھی بڑا جو ہے نا تھوڑا سا کیئرلیس تھا, اور اب تو خیر بالکل ہی دیکھیں لاک ڈاؤن ہو گیا تو کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. خیر جی, ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں 15 ستمبر سے جو شادی ہالز ہیں یہ کھول دیے گئے ہیں, لیکن شادی کی تقریب اب پہلے جیسی نہیں ہوگی. ایس او پیز پر اس میں عمل درآمد کرانا ضروری ہوگا, اور شادی ہال مالکان کی جانب سے ایس او پیز وضع بھی کر دی گئی ہیں. ہال میں فاصلے سے کرسیاں رکھی جائیں گی. شادی ہالز کے مرکزی گیٹ پر ڈس انفیکشن گیٹس بھی نصب ہوگے, تو خیال رکھیے گا کپڑے زیادہ مہنگے نہ پہن کے جائے گا. ایسا نہ ہو کہ جو کیونکہ یہ جو ڈس انفیکٹنٹ اس میں بلیچ بھی ہوتی ہے تو آپ کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں, تو بعد میں یہ نا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی کریں گے جو مارکی میں پہلے اگر 1000 لوگوں کا ارینجمنٹ ہوتا تھا تو اب 40% کیپیسٹی کے بعد جب وہ 400 لوگوں پہ آئے گی تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا ایکسپینس پہ, اور وہ اوور آل جو شادی کی گہما گہمی ہوتی ہے اس میں کس حد تک ہوتے. سلمان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلام آباد مارکی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. سلمان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. 15 ستمبر سے ہالز کھولے جا رہے ہیں, کیا تیاری ہے, کیا ایس او پیز ہیں, بات کس طرح کی کچھ ایس او پیز ٹیبل پہ رکھی گئی ہیں ابھی تک؟ ویلکم جی, بالکل ایس او پیز ہمیں ملی ہیں. 7 اگست کو پنجاب گورنمنٹ نے ایس او پیز دی ہیں, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کنٹری وائڈ وہی امپلیمنٹ ہوں گی, اگر تو باقی صوبے بھی اگری کر جاتے ہیں, لیکن فی الحال خالی پنجاب کی طرف سے آئی ہیں. اور دیکھیں ایشو یہ ہے فی الحال کہ ہماری انڈسٹری کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 15 اگست کو ہم کھلیں گے بھی کہ نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کا جو بھی بیان آیا ہے اس میں ایک ٹینٹیٹو کی اپروچ ہے, اور ہمیں اسکولوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے, حالانکہ باقی ساری ہاسپٹالٹی انڈسٹری کھل چکی ہے. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمیں اسکولوں کے ساتھ کیوں الائن کیا ہوا ہے. ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اسکولوں کی ایس او پی سے یا اسکولوں کے ڈائنامکس سے. اور ریسٹورینٹ انڈسٹری کی اور ویڈنگ انڈسٹری کی ایس او پی از ایگزیکٹلی دا سیم. تو کھولنے میں 35 دن کا ڈیلے کیوں؟ ہمارے لیے سب سے بڑا کوشچن مارک اس وقت یہ ہے کہ اگر پوری ہاسپٹالٹی انڈسٹری کھل جاتی ہے, محرم کے دن گزرتے ہیں,
اور نمبرز انکریز کرتے ہیں تو کیا ہماری انڈسٹری کو اور مزید لٹکا دیا جائے گا؟ تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. اور ٹینٹیٹیو اپروچ کی وجہ سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اس حوالے سے کہ کب ایگزیکٹلی کھلے, کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 15 اگست سے کھلے گی, پھر یہ بات ہے کہ نہیں جی جو 15 پھر بعد میں 15 ستمبر بھی کر دیا گیا. تو آپ کو پراپر نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ملا اس حوالے سے؟ نہیں جی, ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا, اور ہمیں جو ایون وربلی کمٹ کیا جا رہا ہے وہ ہمیں ٹینٹیٹیو کی اپروچ لگ رہی ہے. اور کیونکہ اسکولس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 سپٹمبر کو ریویو کیا جائے گا, تو ہمیں لگ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا, اور نمبرز انکریز ہونے کی صورت میں ہمیں مزید یہ پش کریں گے فردر. اور ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر ایڈوانس بکنگ لیتے ہیں تو پھر ان ایونٹس کا کیا ہوگا؟ ایس او پیز تو چلو ہم جب آئیں گی تو فالو کر لیں گے. سلمان یہ چلیں لیٹس اسیوم اف آل گوز ویل, جیسے اللہ کا شکر ابھی تک کورونا جو ہے اس نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے پاکستان پہ, لیٹس اسیوم دیٹ اف آل گوز ویل 15 ستمبر سے آپ لوگوں کی انڈسٹری جو ہے وہ ریزیوم ہو جاتی ہے. کیا کیپیسٹی رکھی جائے گی؟ بہت بڑی بڑی مارکیز ہیں ان کی, بہت بڑی بڑی ایئر کنڈیشننگ یونٹس ہیں, ایکسپینس ہے, کیا رکھا جائے گا, کیسے مینیج کیا جائے گا اس کو؟ دیکھیں فی الحال تو گورنمنٹ نے بولا ہے 50% آف دا ہال کیپیسٹی. 50% پہ ہم لوگ بریک ایون بھی کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے, لیکن اس وقت ڈیسپریٹ ہم اتنے ہو چکے ہیں کہ بریک ایون کرنے پہ بھی ہم فی الحال راضی ہیں. لیکن اس کا پھر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نمبرز انکریز کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک ایس او پی بن جائے تو 6 مہینے تک وہی چلتی رہے, چاہے کورونا کے نمبرز جو بھی ہوں. فار دا ٹائم بینگ 50% پہ وی آر اوکے. صحیح. بہت شکریہ. انشف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پہلے جیسے کہا جا رہا تھا کہ 15 اگست کو شادی ہالز کھول دیے جائیں گے, پنجاب کی بات کریں, لیکن ایک دم پھر سے آئے کہ نہیں, کیونکہ اسکول جو ہیں وہ 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے, اور اس کے ساتھ یہ بھی آگے کہ شادی ہالز بھی 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے. اسی لیے سلمان بھی اس کوشچن کو ریز کر رہے تھے, پوائنٹ کو ریز کر رہے تھے کہ ہمیں اسکولس کے ساتھ مرجی کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ شفاعت اب باقی جب ریسٹورینٹس بھی آپ نے کھول دیے ہیں, جب سنیما گھر بھی آپ نے کھول دیے ہیں, تو پھر شادی جو ہالز ہیں وہاں پہ بھی اگر ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے, کیونکہ شفاعت یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں فیس بک پہ بہت ساری ایسی شادیاں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں نا, پکچر نظر آ جاتی ہیں ہمیں. جی جناب, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جولائی میں دنیا کی دوسری بیسٹ مارکیٹ کا اعزاز اپنے نام کیا. اسٹاک مارکیٹ نے 17 سال بعد بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اور 20 سال کا اگر موازنہ کیا جائے تو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا 19% سالانہ منافع بھی ملتا ہے. جی جناب, اور یہ منافع کسی بھی پراپرٹی, کسی بھی آپ کی دیگر ایسٹ یا ریئل اسٹیٹ سے, سونے سے, سونے سے انفیکٹ گولڈ تو ماشاءاللہ گولڈ سے بھی زیادہ پروفٹ گارنٹیڈ تو نہیں ہوتا, لیکن امکان ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ سمارٹلی پلے کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اب خواتین کو اسٹاک ایکسچینج میں ذرا ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کروانے کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے ایس بی سیکیورٹیز کے علی فرید خواجہ صاحب, انہیں ہم شامل گفتگو کریں گے. علی بھائی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو آپ آئیڈیا لے کے آئے ہیں کہ خواتین کو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ذرا بتایا جائے اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں, ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا, یہ کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو؟ Thank you for taking time for this and calling me. جو خواتین ہیں وہ سیونگز کرتی ہیں, اور آج کل کے ٹائم پر سیونگز کو صحیح طرح مینیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ کس طرح اپنے سیونگز کو وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے ٹائم پہ ہمارے پیرنٹس کے ٹائم پر لوگوں کی پکی جابز ہوتی تھی, بعد میں انشورنس پینشن لگی ہوتی تھی. اب جاب مارکیٹ بڑی والیٹائل ہے, اکانومی والیٹائل ہے, اور انفلیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اگر جیسا میں یونیورسٹی کے لیے جب گیا تو میری مدر نے جو ہے سیونگ کی بینک میں اور ریئل اسٹیٹ میں, مگر اب جو ہے وہ فیس جو ہے وہ 10 ٹائم زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر وہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسہ رکھا ہوتا تو وہ میری یونیورسٹی کی فیس نہ دے سکتی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار women especially to be aware of how can they get maximum return on their investment so that they can plan for the household expenses. تو آئی تھنک یہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ گھر میں زیادہ تر سیونگز جو ہے وہ خواتین مینیج کرتی ہیں. بالکل, اور خواتین کا ایک اپنا نا فکس بجٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائے گا علی کہ خواتین کو نا فکس انکم چاہیے, تو کیا اگر خواتین جو اسٹاک ایکسچینج میں یہاں پہ اگر انویسٹ کریں تو کیا ان کو فکس انکم مل سکتی ہے, کہ ان بیچاریوں نے تو تمام جو اپنا بجٹ ہوتا ہے وہ اسی پہ رکھا ہوتا ہے؟
जी एब्सोल्युटली, तो यही समझाना है क्योंकि लोगों को कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कि स्टॉक प्राइसेस के ऊपर या नीचे जाने से नहीं मिलता। कंपनीज जो है अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है जिसको डिविडेंड कहते हैं, और पाकिस्तान की कंपनीज 10, 12 से 11, 12 कुछ 14-15% भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। तो ये उसी तरह है। आपको जो फंडामेंटल चीज़ लोगों को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक्स में नहीं कर रहे, वो कंपनीज में कर रहे हैं। और पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिस तरह नेस्ले, कोलगेट, हबीब बैंक, ये सारी बड़ी बड़ी अच्छा कंपनीज अली, हैं मुझे ये जिन पे लोगों को बताइएगा, एतबार है, जिनके बड़े हाई रिटर्न ये हैं। खवातीन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट करने से इससे तो नहीं भागती बिकॉज इट्स टू टेक्निकल फॉर देम समहाउ? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सेस जो है दो सबसे बड़े रीजन है कि उनको लगता है कि या तो हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो इसलिए वो दूर रहती है, या किसी ने उनको कभी समझाने की कोशिश नहीं की होती, आउटरीच नहीं की लोगों ने, ब्रोकरेजेस ने, टू टीच कॉमन पीपल व्हाई एंड हाउ शुड दे इन्वेस्ट। अच्छा ये बताइएगा अब कैसे एजुकेट किया जाएगा खवातीन को? कोई प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है? क्योंकि हम कल भी इनफैक्ट 2 दिन पहले भी हम PSX से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा जी हमारे पास वो 3 लाख इन्वेस्टर हैं, 10 साल पहले भी 3 लाख थे और 10 साल बाद भी कोई 3 लाख के आसपास ही हैं। तो वो खवातीन को अगर लाना है तो ज़ाहिर ट्रेन करना पड़ेगा उनको, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम और उससे पहले अली और शफात, उससे पहले हमें उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा ना। तो अब मैं बैठी हूँ तो मैं चाहूँगी कि मुझे आप कन्विंस करें कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ इसमें। That's a great question and सबसे आसान बात उसकी ये है, 2 बातें हैं। एक तो ये कि अगर पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट ने 19% रिटर्न दिया है पर एनम, तो अगर आपने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको एनुअलाइज रिटर्न 19% मिल रहा होता। ये डबल रिटर्न है बैंक अकाउंट में पैसा रखने बिल्कुल, उसका तो वैसे भी कम हो गया, 2 टाइम ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है एनुअलाइज। पहला बात ये है, और दूसरी बात ये है जो आपने बात बिल्कुल सही की कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। मगर मैं अगर आपसे बोलूं, सॉरी माय हेडफोन्स केम आउट, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने पावर सेक्टर के बारे में तो सुना होगा कि पाकिस्तान में पावर सेक्टर में गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे हैं, उस पर अखबारों में भी बड़ा लिखा बात है। आप भी वो वाले रिटर्न्स ले सकती हैं बाय इन्वेस्टिंग इन द लीडिंग पावर कंपनीज इन पाकिस्तान। जो रिटर्न उनके बड़े शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वही रिटर्न आपको मिलेगा बाय इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। तो आपके लिए वो समझना काफी आसान होगा। अच्छा साहब ने ये भी बताया नहीं कि कितनी खवातीन पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं? उनको तो ये लगता है ना कि अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो हमें लाखों की अमाउंट चाहिए होगी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जी, पीपल कैन ओपन देयर अकाउंट विद एज लेस एज 5,000 रुपीज़, और इस तो 5,000 रुपए से भी वो स्टार्ट कर सकती हैं। ये उसी तरीके से जिस तरह आप बैंक अकाउंट में सेविंग करते हैं उसी तरीके से आप अपने सेविंग का एक हिस्सा स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें रिटर्न आपको 2 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं ऑन एवरेज ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। शफात का पॉइंट था कि एजुकेशन किस तरह देंगे, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान मार्केट में अभी तक जो है आउटरीच नहीं हुई, लोगों को सिखाया नहीं गया। PSX अब काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है, वो लाइव वेबिनार्स करते हैं। हमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है KSB वार्सिटी के नाम से, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें दुनिया के 18 ग्लोबल लीडर्स जो कि US से लेकर UK, हांगकॉन्ग में जो फाइनेंस में काम करते हैं, उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को लेक्चर्स दिए हैं और बिल्कुल फ्री कोर्स है, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। So there are a lot of initiatives which are coming now. I think the most positive thing in Pakistan is पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की अली, पोटेंशियल बहुत है और अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में लाने की बात है, प्रॉफिट्स गारंटीड है। बहुत शुक्रिया जनाब हमें आगाही फराहम करने के लिए। और मदिया मेरा ख्याल में बीसियाँ डालनी खत्म करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करें। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग टिप्स दे रहे थे कि ख़वातीन जो ज़रा अपना कमेटियाँ डाल रही हैं, मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कमेटियाँ डाल रहे हैं, वो कमेटियों से पैसे निकालें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और हमारे साथ चेयरमैन KSB मौजूद थे, उन्होंने जो मदिया को मतलब अच्छी खासी तरगीब दे दी। तो कायल हुई आप? हाँ एग्जैक्टली, 19% डिविडेंड सालाना। मैं सोची मैं पावर सेक्टर में मतलब कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं ये उस वक्त से मेरा दिमाग अब ये काम कर रहा है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि देखिए बैंक में पैसा रखने का कोई फायदा नदीम बाबर साहब की कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, फिर हो सकता है शायद अरशद शरीफ साहब आपको शो में बिठा ले, एन मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अगर अरशद शरीफ साहब मुझे तो शो में बिठाएंगे तो मैं मशहूर हो जाऊंगी।
अच्छा चले जी, बहुत कुछ है जी आज के शो के राउंड 2 में आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। ऑपोजिशन के बाहमी तनाज़ात के बाद एपीसी के इनेकाद खतरे में, नून लीग की क़यादत की खामोशी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना फजल रहमान दोनों बड़ी जमातों से नाराज़। नून लीग ने नवाज शरीफ की हुकूमत चलते रहने की यकीन दहानी की तरदीद कर दी। एक अहम खबर शामिल करते चले, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री में जो समाअत जारी है उसमें कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से अमवात पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक पर बरहम नजर आई है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम शामिल करने का हुक्म, और चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को हिदायत जारी की है कि सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया जाए। आपको एक बार फिर बताते चलें कि चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत जारी की है कि सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में डाल दिया जाए और तमाम मुकदमात में सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम शामिल किया जाए। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से अमवात पर समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक पर बरहम नजर आई है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में सीईओ का नाम शामिल करने का हुक्म, अटॉर्नी जनरल साहब सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में शामिल करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी कर दिए। और अभी आपको एक और अहम खबर बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज आज नैब में पेश होंगी। नून लीग की क़यादत ने अपने कारकुनों को भी रावल और नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है। और साथ में काफ़ी अरसे से शफात एक बहस चल रही है कि ये एपीसी जो है इसकी डेट कब अनाउंस की जाएगी। ईद से पहले बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात भी हुई थी शहबाज शरीफ से। पहले तो ये मुलाकात होना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा था कि जी मुलाकात होगी नहीं होगी, मुलाकात भी होगी। जब मुलाकात होगी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जी जो आगे वह एहतजाज करेंगे उसकी क़यादत कौन करेगा, उसमें भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि ईद के बाद आप देख लीजिएगा, हम एपीसी की डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन शफात फिर क्या हुआ? मुझे एक गाना याद आ रहा है, लता मंगेशकर ने गाया है, वो मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। तो कोई इस किस्म की सिचुएशन चल रही है जनाब। अपोजिशन के बाहमी तनाज़ात है और एपीसी का इनेकाद हो के नहीं दे रहा। मुश्तरका तहरीक पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये बात हम हर दफ़ा पूछते आए हैं कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टी एक पेज पे है। जवाब मिलता है हाँ है, लेकिन जब अंदर की कार्रवाई सामने आती है तो वो कुछ यूँ होती है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की लाहौर में होने वाली मुलाकात में तय ये पाया था कि ईद के बाद एपीसी की तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब तक एपीसी का तारीख तो क्या उसका एजेंडा भी तय नहीं हो सका। बिल्कुल शफात। और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की खामोशी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान, इनको अब सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग की क़यादत की जानिब से बयान सामने आया है कि एपीसी ज़रूर होगी, लेकिन अब तक इस बारे में हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एफएटीएफ के बिल की मुखालिफत का फैसला किया था, लेकिन जब असम्बली में गया तो असम्बली में इस पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। नून लीग के रहनुमा इसे कोताही करार दे रहे हैं, और उनका कहना था कि सियासी फैसले शहबाज शरीफ करते हैं और हर कानून साजी से पहले नवाज शरीफ से रहनुमाई भी ली जाती है। पार्टी में कोई धड़ा बंदी मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ ने 5 बरस तक हुकूमत चलने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। ये वही बात है जैसे हमारे साथ शायद खाकान अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसी हुकूमत को 5 साल चलने देना अपोजिशन के एंड पे जो है वो बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है वो कह रहे हैं इनको चलने दें। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पहले एपीसी में शामिल अपोजिशन जमातों की हुकूमत गिराने से मुतालिक मुख्तलिफ राय थी, लेकिन अब 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत को गिराना है। पीटीआई के रहनुमा शफकत महमूद दूसरी जानिब कहते हैं कि अपोजिशन की एपीसी को अवामी हिमायत हासिल नहीं है। आज इलेक्शन करा लें, हम मैदान मारेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारी ने एतराफ़ किया कि अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक राय नहीं है, और ये गुफ्तगू उन्होंने कल वसीम मदामी के शो में की थी। 1 या 2 या 3 हुई हैं, उसमें यकीनन ये बात क्लैरिटी से कोई नहीं कह सकता था कि हुकूमत फौरी गिरनी चाहिए। इस पे मुख्तलिफ आरा थी, मुख्तलिफ
लीडरशिप की। वन नकाती एजेंडा है कि हमने हुकूमत को गिराना है। शायद ही कोई हुकूमत होगी जिसके खिलाफ एपीसी नहीं हुई, एपीसी बंद, और वो एजेंडा यही होता है कि जी हुकूमत को गिराना है। ये कुछ कामयाब हुए और कुछ कामयाब हो रही हैं, और जिस तरह ये है ये कामयाब नहीं हो रही, इसलिए अवाम में पजीराई नहीं है। अगर आज इलेक्शन कराएं तो क्या होगा ये बताएं। आज इलेक्शन कराएं जीतेंगे हम। इत्तेफाक राय नहीं है अपोजिशन में, यकीनन नहीं है। इत्तेफाक राय करने के लिए तो हम अपोजिशन कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं और हम एपीसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 साल के बाद ये हुकूमत अपने बोझ से गिर रही है। माजिद के साथ ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ बासी साहब के शो में तमाम तर गुफ्तगू हो रही थी, और इसी हवाले से क्योंकि एपीसी का अब लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार है, तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। ये कहिएगा कि पहले हमें बड़ा इंतजार होता था कि जी BRT की डेट कब आएगी। फाइनली BRT की डेट तो आ गई, अब एपीसी तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि उसका अभी तक डेट का ऐलान ही नहीं हो पाया। तो सर ये कब होने जा रही है एपीसी? देखिए, अपोजिशन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन मुशावरत के बाद एपीसी का फैसला करेगी। इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि मुल्क के मसाइल बेपनाह हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अब अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं कि उनको रिलीफ देगी। तो इस पर सारे मुतफिक हैं। अब क्या लाएमल होगा ये एपीसी ही डिसाइड करेगी। एपीसी कब होनी है ये मुझे अब ऐसा लगता है कि ये मुहर्रम 10वीं मुहर्रम के बाद ही, यानी सितंबर के महीने में होगी। पहले हमारा ख्याल था कि उससे पहले हो जाए, लेकिन जो भी हालात हैं मेरे ख्याल सितंबर में जाकर होगी, और शायद वो टाइमिंग कुछ बेहतर हो क्योंकि छुट्टियों का जो वक्त है गुजर जाएगा और तवज्जो से सारा कुछ बहस हो सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब, आपसे भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत से बज़ाहिर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो शायद इसका इजहार नहीं कर रहे, लेकिन उनको लगता है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। तो क्या हुकूमत इन हालात में कोई मुतफ़िक़ा तहरीक, हुकूमत के ख़िलाफ़ इन हालात में कोई मुतफ़िक़ा तहरीक शुरू हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। उनके यकीनन उनकी बात में वज़न है, लेकिन ये सियासत का हिस्सा होता है। जब मकसद एक हो और एक बेहतर मकसद हो अवाम को रिलीफ देने का, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये इख्तलाफात या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और एपीसी में एक मुतफ़िक़ा लाएमल तय हो सकेगा। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी कहेगा कि FATF से मुतालिक कानून पर अपोजिशन ने मुखालिफत का ऐलान किया था, लेकिन कानून बड़े आराम से असम्बली से पास भी हो गया। सो क्या इस मामले पर अपोजिशन में अंदरूनी तौर पर एक तकसीम थी कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर असम्बली में पास हो गया और आप लोग उसकी इतनी मुखालिफत कर रहे थे? नहीं, हमने FATF के बिल्स की मुखालफत का ऐलान नहीं किया। हमने कहा था उन बिल्स की मुखालफत कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं है, और हमने मुखालफत की। एक बिल जो था वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। बाकी जो 3 बिल अब तक पास हुए हैं उनकी तरामीम अब देख रहे हैं, ये सब अपोजिशन की तरामीम है। ख़ास तौर पर जो अभी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल पास हुआ है, आप उसकी जो असल शक्ल थी वो देख लें और जो बिल पास हुआ है वो देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। तो जहाँ पर भी मुल्की मामलात हैं वहाँ पर हमारा उन मामलात को सपोर्ट रहेगी, लेकिन हम उस पर इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि मुल्क का मफाद बेचा जाए या अवाम पर कोई बोझ डाला जाए या कोई ऐसे मामलात हों जिससे मुल्क में जमहूरियत पर हरफ आए। ये हमने इजाज़त नहीं दी और नहीं देंगे। शाहिद साहब, अब ये भी एक तासुर है और PTI के इस हवाले से टॉक शोज़ में भी अक्सर बात करती है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मियाँ साहब इस यकीन दहानी पर बैरून मुल्क गए हैं कि वो 5 साला हुकूमत की मुद्दत जो है वो मुकम्मल होने देंगे और उसे गिराने में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। आप इस तासुर के ऊपर अपने को कमेंट करना चाहेंगे? अगर किसी के पास कोई ये ज़मानत है तो बता दे। नवाज शरीफ साहब तो वो आदमी है जो मुल्क से बाहर थे तो वापस आकर जेल चले गए थे। आज वो इलाज के लिए गए, सारा पाकिस्तान जानता है, हुकूमत जानती है, अदालतों ने परमिशन दी है। जब इलाज हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा उनके बगैर तो हमें बता दें, हम इंशाल्लाह उनके पास जाकर उनसे कहेंगे कि आप वापस आ जाएं, पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये छोटी बातें करने वाले छोटे लोग होते हैं जो ये बातें करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी कोई सबूत है तो लाएं, छोटे लोग होते हैं इस किस्म की छोटी छोटी बातें करते हैं। और साथ में जो एपीसी के हवाले से जो हम बार बार बात कर रहे थे, अब आशूरा के बाद शफात उसकी डेट आएगी, यानी कि सितंबर से आगे की बात होगी। तो मतलब ये सितंबर में चलेगी। तो वो जो तहरीक ने इतना जोश पकड़ा हुआ था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम रास्ते में निकलेंगे ही तो इस्तीफा भी आ जाएगा, तो ये तो दम तोड़ जाएगा। मतलब उस टाइम बड़ी टेंशन हो गई है। वो नदीम अफजल चंद साहब की जो है ना बात याद आ गई है, जो उन्होंने मुख्तार को खिताब करते हुए कहा था। मैं वहाँ पे वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कह रहे थे कि गल बद गई है मुख्तार। आगे बढ़ते हैं जी। और एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद ने पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर उनके साथियों समेत फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा है कि 30 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम दी, इसलिए दबाव डालने के लिए मुकदमात बनाए जाते हैं। और अब ज़रा अवामी मुश्किलात के वाले से शफात बात करें। वो क्या कमाल रवान साहब ने बात की थी कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, मतलब चीनी की प्राइस पे नोटिस लिया गया, वो बढ़ गई। और उसके बाद हमने देखा कि जी आटे की प्राइस के वाले से बात भी की, और ये भी जो आटे की प्राइस है ये भी बढ़ गई। तो किस वाले से भी तो नोटिस लिया गया था ना शफात? हाँ जी, वो 65 रुपए किलो का जो आटा मेरा था 70 रुपए का हो गया। बताएं 70 तो नहीं 75 का हुआ है। खैर 70 का जो दे रहे हैं वो बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ। और 100 रुपए की जो चीनी थी वो माशाल्लाह 104 पे चली गई है। तो और डायरेक्ट जो रोटी आपको 10 जब 80 पे थी तब नोटिस हुआ था, 80 पे थी और अब 100 पे होगी, तो अब वो 104 पे अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। तो जनाब जो रोटी भी है ना, अब वो जो 10 रुपए की मिल रही थी ना वो हो गई 15 रुपए की। तो पाकपतन में जो सिचुएशन है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन तो हमें बताएंगे, लेकिन शफात ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वाकई जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 20 रुपए पे भी 15 रुपए पे भी रोटी की कीमत गई है, 20 रुपए पे भी गई है, और कुछ जगहों पे 25 और 30 रुपए में भी रोटी फरोख्त हो रही है। तो जो लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों जो बहरान है ना गंदम का, ना चीनी का, ना दीगर चीज़ों का, सब्जियों की कीमतों का, वो काबू में नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, इसी वाले से रिपोर्ट करें पाकपतन से हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटा चक्की मालकान ने आटे का रेट 65 से 70 रुपए फी किलो कर दिया। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। आटा जो है 60 से 70 रुपए तक बिक रहा है। रोटी का जो रेट है वो 15 रुपए से कम नहीं है। 100 ग्राम की रोटी 6 रुपए में चाहिए, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो लिस्ट है गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक मेरी हुकूमत से मुतालबा है कि रेट ठीक करें। आटा चक्की मालकान का कहना है कि गल्ला मंडी से महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा नहीं बेच सकते, हुकूमत हमें रिलीफ दे। आटा पड़ता है 65 रुपए किलो, अगर हमें गवर्नमेंट गंदम देगी 1500 रुपये, जो कि 1475 रुपये जिस हिसाब से फ्लोर मिल को दे रही गंदम, हम 2000 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट को आटा देंगे, जो कि गवर्नमेंट 2000 रुपये पर 40 किलो जो आटा फ्लोर मिल से ले रही है वो फाइन आटा नहीं है, उसमें सूजी मैदा सब कुछ निकला हुआ है, और गवर्नमेंट को आटा भी वो 50% वापस करते हैं। आटे के निर्ख बढ़ने से रोटी के रेट को भी पर लग गए। आम बाजार में 100 ग्राम की रोटी 10 रुपए से 15 रुपए में बिकने लगी। गल पैंदे ने 1600 का मन है सी रोटी 10 रुपए की, हुण 2400 का मन है। हाँ जी, सानू तो वारा ही नहीं खाती, हर गाह की इतराज करता जी, रोटी हौली हो गई जी। आटे और रोटी की बढ़ती हुई कीमतों ने दिहाड़ीदार तबके की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया। आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी की पहुंच से 2 वक्त की रोटी भी दूर होती जा रही है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इनकी कीमतें कम करने के लिए मौसर इकदाम उठाए। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। चलिए, मुझे मालूम है कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, और हम आपको मानसेरा की जो है ना वो सैर करवाते हैं। अब आप लोग कहेंगे भाई ऐसे कैसे सैर होगी, तो ऐसे भी सैर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन तो उठ गया है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करना है। जो मकाम है नारान, आप जरा नारान तक पहुंच जाएं तो वहाँ पे इस वक्त सयाहों ने जो है वो बिल्कुल धावा बोला हुआ है, और वो धावा को गलत मानो नहीं, वो बड़े अच्छे मानों में बोला हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि बड़े अरसे बाद टूरिज्म इंडस्ट्री जी रिवाइव हो रही है, उन इलाकों की रौनकें बहाल हो रही हैं, ये सीजन है, और फाइनली लोगों को रोजगार भी वापस आ गया, जो थोड़ा सा डिले हो गया हाँ, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहरहाल मौजूद है। शहजाद तनोली हमारे नुमाइंदे वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात करेंगे एक बार फिर से कराची की। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से अमवात पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आप भी कराची के शहरी हैं, आपको भी एहसास होना चाहिए। अदालत का वकील के इलेक्ट्रिक से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी 21 लोग मरे हैं, आप जाकर इम्तिना ले लेते हैं। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा कि लोग घरों में मरे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि बिजली का कोई ना कोई फॉल्ट होता है तो बंदा मरता है। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि सड़कों पर भी लोग मरे हैं, अर्थ वायर ही खत्म कर देगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक समी मौजूद हैं। जी फारूक, बताइएगा क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले चेयरमैन नेपरा को अदालत में बुलाया गया और उसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं मोनिस अलवी, उनको भी बुलाया गया। अदालत ने गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से इलाका का मामला जो है जेर समाअत है और अदालत ने आज की इलेक्ट्रिक में सख्त बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में सीईओ को नाम शामिल किया जाए। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम CCL में शामिल करें, ये भी उसी वक्त हिदायत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट कराने का भी हुक्म दिया है। जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं करंट लगने से और पूरे कराची से अर्थ वायर हटा दिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता है, इनको एहसास ही नहीं। कराची की बिजली बंद करें तो इनको बंद कर दें। जुम्मे को मैं आया था, शाहरा फैसल पे पूरा अंधेरा था, लोग बाहर बैठे हुए थे। इनको पैसा कमाने के लिए लाया गया था क्या? उन्होंने ये सवाल किया चेयरमैन नेपरा की जानिब देखते हुए। तबाह कर दिया इस इदारे को और सस्ता मटेरियल लगा दिया और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ये भी आज रिमार्क दिए हैं। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन जो सीईओ के इलेक्ट्रिक हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हम स्टेट बैंक को भी मना कर देंगे कि इनका मुनाफा बाहर ना भेजें। आपको शर्म नहीं आती, लोगों को भाषण देते हैं। चीफ जस्टिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को आज अदालत ने झाड़ पिला दी। बदतरीन इंतजामिया है, पहले से भी बदतर हो गया है निजाम। कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। हमने फारूक ये बताइएगा, क्या के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मुअत्तली के हवाले से भी नेपरा से कोई सवाल किया गया है? देखिए, आज चेयरमैन नेपरा से चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि अगर कि इलेक्ट्रिक का हम आप लाइसेंस मुअत्तल कर दें बतौर रेगुलेटरी अथॉरिटी तो क्या आपके पास इसका मुतबादिल है? इस हवाले से चीफ जस्टिस ने इंडिया की मिसाल, वहाँ पर अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो वहाँ पे बोर्ड बने हुए हैं जो कि उसको तहवील में ले लेते हैं और काम करते हैं। जिसका जो तसल्ली बख्श जवाब है वो चेयरमैन नेपरा यहाँ अदालत में ना दे सके और उनका ये कहना है कि इस हवाले से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं और जल्द हम इस हवाले से हिकमत अमली बना लेंगे। चेयरमैन नेपरा का ये कहना था अदालत में कि जब भी हम इस हवाले से कोई फैसला करते हैं तो ये अदालत में जाके स्टे ले लेते हैं। इससे कबल भी हमने निजी कंपनीज को इजाजत दी कि वो बिजली बना के इनको फरोख्त करें तो उन्होंने स्टे ले लिया। चेयरमैन नेपरा ने आज अदालत में ये बताया कि 44 बिलियन से जायद रकम कराची के शहरियों की स्टे ऑर्डर के बायस जो है वो अब तक जो है वो अदा ना हो सकी है और अगर वो अदा हो जाए तो शहरियों को कुछ फायदा पहुंच सकता है। फारूक, अबराज ग्रुप स्कैंडल के हवाले से भी कुछ बात हुई है, कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं, क्या कहा चीफ जस्टिस ने, क्या रिमार्क्स दिए? देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने जब सब बरहमी का इज़हार कर रहे थे तो उस वक्त उनका ये कहना था कि आप सारी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। वहाँ पे आपको गर्दन से पकड़ के आपसे पैसे निकलवा लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ दे देते हैं। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं जो आप पहले करते थे। जी सही, ठीक है। अच्छा फारूक समी, साथ में ये भी बताइएगा कि काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है कि इलेक्ट्रिक के सीईओ पर भी उन्होंने बोला है कि इनका नाम एक तो ECL में शामिल किया जाए, दूसरी जानिब भी कहा गया है कि जो के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। इस हवाले से बताइएगा। देखिए, आज चीफ जस्टिस ने जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करते हुए चेयरमैन नेपरा को मुखातिब करते हुए और अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए अहकाम दिए थे और उनका ये कहना था कि जो जितने अफराद मरे हैं उनके मुकदमे में भी सीईओ को शामिल किया जाए, इसके साथ साथ ऑडिट किया जाए, एक एक चीज को ऑडिट किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा एक एक इंच का ऑडिट करें इनका और इसकी रिपोर्ट बनाएं और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि स्टेट बैंक को भी ये हिदायत की जाए। अटॉर्नी जनरल के जानिब देखते हुए कहा कि स्टेट बैंक को ये हिदायत करें कि वो भी इनका ऑडिट करें और एक एक चीज का ऑडिट किया जाए कि कराची से पैसा यहाँ से पैसा कमा के अब बाहर मुंतकिल ना किया जाए। इससे कबल भी चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि यहाँ से पैसा कमाकर बाहर के जो डिफॉल्ट थे जहाँ पे उसके जो पैसे हैं वो पूरे किए गए थे। जी सही। अच्छा फारूक, अब ये भी बताइएगा कि जो के इलेक्ट्रिक में जो अर्थ वायर्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं के इलेक्ट्रिक का, उसमें मौक़िफ़ ये सामने आता है कि जो
जो कि इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, जैसे खंबे हैं, मीटर्स हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोग जो अपने घरों में फौत हो रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ पेश किया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, आज की इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट सामने आ रही थी तो ये कह लें आप, जो उर्दू का मुहावरा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चेयरमैन नेपरा ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उनकी रिपोर्ट में भी, और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट के अंदर भी ये बात सामने आई कि ज्यादातर जो अमवात हुई हैं वो शहर में घरों के अंदर नहीं हुई, घरों से बाहर हुई हैं। इस हवाले से अदालत को ये बताया गया कि जो अर्थ वायर था, चेयरमैन नेपरा ने अदालत को आगाह किया कि अर्थ वायर नहीं मौजूद था। ताहम उसके बाद जब चेयरमैन नेपरा ने इस पर नोटिस दिया गुज़िश्ता बारिशों के बाद, तो अब अर्थ वायर का काम काफी हद तक मुकम्मल किया गया है। ताहम 100% काम अर्थ वायर का अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, और ये अर्थ वायर न होने के बायस जो है वो अमवात हुई है। ये अर्थ वायर प्रॉपर ना होने की वजह से अमवात हुई। बहुत शुक्रिया जी फारूक समी, हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे, क्योंकि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से अमवात पर सुप्रीम कोर्ट कराची डिस्ट्रिक्ट में ये समाज जारी। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अब हम आपको लाहौर से खबर देते चलें। जी जनाब, बल्कि लाहौर से तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। हम कोशिश करेंगे उसके हवाले से भी जैसे जैसे तफसीलात सामने आती जाएं हम आपके साथ शेयर और वो करते। खबर है कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज, आज नैब में उनको पेश होना, इस हवाले से वो रवाना भी हो गए हैं। नून लीग की क़यादत ने ऑलरेडी अपने कारकुनों को भी रावंड में तलब कर लिया है, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में रावंड में जाती उम्रा के बाहर उनके कारकुन मौजूद हैं। और कुछ कारकुनान तो मैं शफात सुबह जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, इस हवाले से वो बता रहे थे कि वहाँ पे रात के वक्त से इनके कुछ कारकुन भी आ गए थे। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, बताइएगा नैब ऑफिस के बाहर क्या माहौल है? जी बिल्कुल, नैब ऑफिस के बाहर भी बहुत मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है, लेकिन इस वक्त हम आपको जाती उम्रा के हालात बताते हैं कि मरियम नवाज साहबा अपने घर से निकल के बाहर गाड़ी में बैठ चुकी है, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो तमाम तर रुकावटें तोड़कर जो रायविंड महल है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो वहां तक जाना चाहते हैं जहां पर मरियम की गाड़ी में मौजूद है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी अमले ने उन्हें रोक लिया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर अब आना शुरू हो गया, और कुछ ही देर में मरियम नवाज साहबा जो है वो यहाँ से नैब ऑफिस के लिए रवाना होगी। जी अच्छा, वो ठीक है जी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी उल्फत आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमें तफसीलात से आगाह करने का, और आपको बताते चलें कि रायविंड में जो जाती उम्रा के इर्द गिर्द जो फार्म लैंड है उसमें तकरीबन 200 एकड़ अराजी को ग्रीन लैंड में तब्दील करने के हवाले से ये मुकदमा, ये रेफरेंस कायम किया गया है, जिसमें मरीम नवाज से पूछ गछ होनी है। और इसीलिए मरीम नवाज अभी जैसे विजुअल्स में आपको दिखा रहे हैं, वो जाती उम्रा से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो रही है। नैब ऑफिस के बाहर ऑलरेडी नून लीग के कारकुनान मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां 13 अगस्त से 21 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा, और कोरोना वबा के दौरान ये सूबे की पहली बड़ी मुहिम है। और इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 25,41,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के लिए 409 टीमें तश्कील दी गई हैं। 14,335 मोबाइल टीमें भी शामिल हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाएगा, और स्टाफ को सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, PPEs और थर्मल फराहम की जाएंगी। इसी हवाले से जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पोलियो के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल बासित साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में जो मुहिम शुरू की जा रही है, क्या टारगेट है इस मरतबा, और क्या अहदाफ रखे गए हैं, किस तरह से पूरा किया जाएगा उन्हें? इस दफ़ा जो हमारा टारगेट है बच्चों को कवर करने का अंडर 5 इयर्स, वो 4.8 मिलियन है, और इसके लिए जो टीमें मोबिलाइज हुई हैं उसमें 14,435 जो है मोबाइल टीम्स हैं। इसके अलावा 1,229 फिक्स टीम्स हैं, 1,077 यूपैक चेयरमैन हैं, और 1,380 जो हैं वो तहसील मॉनिटर्स हैं। ओवरऑल जो लोग मोबिलाइज होंगे इस कैंपेन के अंदर, वो कोई 42,000 के करीब हम अपने कारकुन जो हैं उनको मोबिलाइज करेंगे। सही। अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये बताएगा कि इस मुहिम के दौरान कोरोना से मुतालिक SOPs को आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे? साथ में ये बताएगा कि जो टीमें हैं इनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा?
जहाँ तक कोविड में फंक्शन करने का ताल्लुक है तो इसके लिए हमारे पास जो PPEs की प्रोविज़न है उसको ऑलरेडी हमने इंतज़ाम कर लिया है और तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक जो है एज ऑफ टुडे सारी PPEs जो हैं, मास्क और सैनिटाइज़र्स वो पहुंच चुकी हैं। हमारे वर्कर्स जो हैं उनको नई SOPs बताई गई हैं कि वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो बच्चों को खुद टच ना करें, पेरेंट्स अपने खुद बच्चों को बाहर लेके आएँ और 2 मीटर के फासले से हमारा वर्कर जो है उनको कोशिश करे कि टच ना करे, और अगर टच कर भी कर ले तो फिर हम ड्रॉपर को चेंज करके नया ड्रॉपर लगाते हैं अपने वाइल के ऊपर। और इसके साथ ही साथ हमने उनको जो है नॉकर्स दिए हुए हैं, डायरेक्टली वो कांटेक्ट नहीं करेंगे सरफेसेस के साथ, और जो अबव 50 हमारे वर्कर्स हैं हम उनको अलाउ नहीं करेंगे फील्ड में। हर सुबह उनका टेम्परेचर चेक और उनकी जो कफ और सिम्टम्स हैं उनको चेक किया जाएगा, एंड इफ दे आर फाउंड ओके देन दे विल बी अलाउड टू गो आउट इनटू द फील्ड फॉर वैक्सीनेशन। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा था कि पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक स्कूल की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया था, और फिर बाद में हमने देखा कि वो हमने अपनी स्क्रीन से भी दिखाया कि बाकायदा तौर पर बच्चों को कहा जा रहा था कि जी इनको पोलियो वैक्सीनेशन हुई है, जिसके बाद वो बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। इस किस्म के प्रोपेगेंडा से निमटने के लिए कोई आगाही मुहिम, कोई काउंटर नैरेटिव भी रखा गया है लोगों के सामने? देखें, जब से ये इवेंट हुआ है तो उसका नतीजा एक ये निकला कि पेशावर में हमारे रिफ्यूज़ल्स जो थे वो एस्ट्रोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जिसके बाद प्रोग्राम ने एक काउंटर नैरेटिव जिसने आपने बताया हमने शुरू किया, और हमने मकामी लेवल पर जिरगे की सतह पर हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज किया। हमने DCs को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि वो जगह जगह पर जाकर लोगों के साथ जिरगा करें, कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करें और उनको बताएं कि यार इन कतरों की जो है वो अफादियत क्या है और कितना नुकसान उनके बच्चे उठा सकते हैं अगर इनको ये कतरे वक्त पर ना दिए जाएं। दूसरा इसका साइड ये है कि जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उनके साथ अकॉर्डिंग टू द लॉ निपटा जाए, और उनके साथ जो भी कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो पॉसिबल हो, ताकि लोग डिटर हों और आइंदा इस तरह के काम न करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ्रंट पर गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन लिया है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 1 year नाउ थिंग्स आर नाउ फार मोर बेटर। सही, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद। 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है ये मुहिम पेशावर में। तो अपने बच्चों को प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलाइएगा, और ये वो कतरे हैं जो कि आपके फ्यूचर को माजूर होने से बचाते हैं। ये कतरे आपके लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा की तरह बात करते हैं कि दुनिया जहान ने पोलियो से जो है छुटकारा हासिल कर लिया है, सिवाय अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। हमने पहले भी इस हवाले से बात की, और वो ये कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो नुस्खा लिखते हैं वो बैनुल अक़वामी तिब्बी मयार के तकाज़े पूरे नहीं करता। कैसे? वो इस तरह से कि जनाब जो दवाई का नाम लिखा जाता है ब्रांड के हवाले से, उसका ब्रांड मेंशन किया जाता है, उसका जेनेरिक नेम, उसका फार्मूला नेम मेंशन नहीं किया जाता, जिससे होता ये है कि एक दवाई जो जेनेरिक तौर पे अगर हासिल की जाए तो उसकी कीमत और होती है, अगर ब्रांड के हिसाब से हासिल की जाए तो उसकी कीमत और होती है। और इसी वजह से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो मिली भगत करके अपने ब्रांड को एंडोर्स करवा लेते हैं। बिल्कुल शफात, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं ये डॉक्टर्स के साथ मिले भगत करते हैं, और जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर में प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसमें डॉक्टर जो चंद कंपनीज के नाम, जो ब्रांड्स के नाम लिख के देते हैं, डॉक्टर्स भी हमें यही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं जी यही ज़्यादा बेहतर आपके लिए दवाई है और यही ज़्यादा ठीक दवाई होगी। और अगर देखा जाए तो उसी फॉर्मूले की जो दूसरी मेडिसिन हैं वो भी मार्केट में, मेडिकल स्टोर में दस्तियाब होती हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं। फ़र्ज़ करें कि जैसे अगर डॉक्टर्स ने आपको एक ब्रांड की दवाई जो है वो तजवीज़ कर दी है, प्रिस्क्राइब कर दी है, और उसकी प्राइस मार्केट में है 600 रुपये, सो उसी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले की जो मेडिसिन है वो हमारी मार्केट में वो 50 रुपए की मिल रही होती है। आप हमारे इस खांसी के सिरप ही देख लें, जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो महंगे 250 की सिरप दे रहे होते हैं, और अगर सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मूले का हम और कुछ सिरप देखने चले तो 25 रुपए में मिल जाता है, 20 रुपए में मिल जाता है। जी जनाब, मिसाल के तौर पर जैसे आपने बात की ना अमोनियम क्लोराइड जो कफ सिरप्स के तौर पर दिया जाता है, तो उसमें ऐसे ही होता है कि वो अगर फॉर्मूले जेनरिक नेम के साथ दिया जाए तो उसकी प्राइस जो है और उसमें और ब्रांड में बड़ा फ़र्क आता है। अब इसी हवाले से हमारे साथ ज़रा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, और इसी तरह हमारे साथ ज़ैनुल हसनैन साहब मौजूद हैं जो कि चीफ फार्मासिस्ट हैं
अब्बासी शहीद अस्पताल के आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। पहले ये बताइएगा, ये जो तासुर और ये जो आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, इस तासुर में किस हद तक हकीकत है? आप किस हद तक इसको इंडोर्स करते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में जो डॉक्टरी नुस्खे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है? डॉक्टर कैसे साहब, आपकी तरफ है ये सवाल। जी सॉरी जी, आपकी तरफ ये सवाल लेके आए हैं आप। ओके, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शफात, बात सारी ये है कि बिल्कुल बात जो रिपोर्टिंग है बिल्कुल सही है। ब्रांड नेम से ही पाकिस्तान में दवाइयाँ लिखी जाती हैं, और चूँकि जेनरिक नेम के साथ अगर आप लिखते हैं, जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रो में बात की है, सपोज अब मैं मिसाल देता हूँ कि पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है, और उस जेनरिक नेम पे अगर हम लिख देते हैं सिर्फ पैरासीटामोल, तो अगर इसको अदर वे राउंड देखें तो मेडिकल स्टोर पे जब जाता है तो ये फिर मेडिकल स्टोर वाले की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो फिर पैरासीटामोल कौन सी कंपनी का देगा वो। तो ये अगर आपको कहना कि ये मैं समझता हूं, डॉक्टर साहब मैं इसको जरा आसान कर देता हूँ। एक पेन किलर है डिक्लोफेनेक सोडियम, वो एक ब्रांड के साथ उसकी कीमत है कोई 235 रुपए, और एक अगर जेनरिक नेम के साथ जाए तो उसकी कीमत कोई 10 से 15 रुपए है। ये बहुत बड़ा गैप है, और इसमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जो दवाई रेकमेंड कर रहे हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं चाहे वो डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से एक को मिली भगत फील होती है। इस तासुर को कैसे खत्म करना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसमें मिली भगत होती है, बहुत बड़े पैमाने पे होती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि देखें, इसको सिस्टम को ठीक करना की जरूरत है। आप प्राइसेस, आप एक सिर्फ रुख देख रहे हैं प्राइस का, आप इसकी एफिकेसी पे बात नहीं कर रहे कि बहुत सारे ब्रांड्स की दवाइयाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने कंपनी अपनी रजिस्टर करा के घर के अंदर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, और वो लोकल दवाइयाँ भी बन रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकल दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, और हम उसको लिखते भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स को ये अपना एक्सपीरियंस होता है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा होती है। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनुल हसनैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी एग्जैक्टली पूछना चाहूँगी कि देखिए, जब हम किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो हमें दवाई लिखते हैं वो बड़ी सस्ती दवाई मिल जाती है, जो हॉस्पिटल के अंदर से मिलती है, और अक्सर तो बेशतर औकात तो आपको फ्री में मिल जाती है। लेकिन वही दवाई, वही बीमारी अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं या प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं, तो उन्हीं बीमारियों के इलाज में डॉक्टर जो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं, एक तो पहले तो वो या तो उसी क्लिनिक में मिलेगी या फिर किसी दूर दराज की क्लिनिक से मिलेगी, और वो काफ़ी महंगी होती है। ये क्या रीज़न है डॉक्टर ज़ैनुल हसनैन साहब? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और इज़हार ख़याल का मौका दिया। बहुत हसास मौजू पे आपने गुफ्तगू की है, और मैं इस पे ये चाहूँगा, बीइंग ए सीनियर फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कि हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि गुज़िश्ता 40 सालों से कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है, और एक एडहॉक सिस्टम पे सारा निज़ाम चल रहा है। अगर कोई मिसाल मिलती है तो भुट्टो साहब के ज़माने में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी, जिसमें जेनरिक सिस्टम को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। अच्छा। लेकिन उसकी कुछ खामियां और उस दौर की माफियाज की बिना पे वो कामयाब नहीं हो पाई। सही। उसके बाद फिर किसी भी गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं बनाई, और ये सिलसिला मेरे मुशाहिदे के मुताबिक 40 साल से जारी और सारी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या वॉल्यूम है इसका कि जो दवाइयाँ आती हैं उनकी जेनरिक कीमत कुछ और होती है? मिसाल के तौर पे जैसे पैरासिटामोल की बात की, 1 रुपये का सॉल्ट है, लेकिन इसकी जो मार्केट प्राइस है ये बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या कितना फ़र्क है, और आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इसमें किस किस लेवल पे मुलविस होते हैं? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें कह लें कि ड्रैप को भी हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। ABC करके अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लें, तो उसमें रॉ मटेरियल तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासिटामोल की अगर हम बात करें, लेकिन उसकी
इफ़िकेसी में कमोबेश थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर होता है। उनकी प्रिपरेशन जीएमपी के मुताबिक वेरी करती हैं। तो उसी एतबार से प्राइस फैक्टर भी काउंट होता है और वो उसको हम काबू इस तरह से कर सकते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक अच्छा कदम ये उठाया है कि एक हेल्थ टास्क फोर्स बनाई है जो कि इस सिलसिले में काम कर रही है और हमने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन फार्मेसी ग्रेजुएट। डॉक्टर साहब, ये जो हेल्थ टास्क फोर्स है, ये क्या दवाइयों की जो कीमतें हैं, जो कि चले अगर 10 पीस की कीमत हो तो समझ में आ जाती, डिफरेंस हो जाए, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये 100 की चल रहा है कि 100-200 में डिफरेंस तक आ जाता है। तो कैसे साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो टास्क फोर्स है ये इसको भी मॉनिटर कर रही है कि वो दवाइयाँ जो कि बड़े आराम से 100 रुपये में मिल जाती हैं किसी बड़े मेडिकल स्टोर या किसी बड़े अस्पताल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वहाँ पर वही सेम मेडिसिन 200-250 की मिल रही होती है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप मदीहा। बात सारी है कि देखिए हमारे यहाँ सिस्टम की खराबी है। अगर आपने जेनरिक सिस्टम से दवाइयाँ डिस्पेंस करनी है तो उसका भी तरीक़ेकार है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर दिमाग में रखें अपने माइंड में कि जो डॉक्टर्स की अपनी तजुर्बा होता है, डॉक्टर्स की अपना एतमाद होता है दवाइयों पे, वो प्रिस्क्राइब करता है। प्लस ये है कि जो डॉक्टर मरीज को लिखता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मरीज कहता है कि नहीं, अब पैरासिटामोल की जो बात हो रही है इसमें एक प्रोडक्ट का लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर दूसरे कंपनी का ला के किसी को दे दिया जाता है तो कहता नहीं इससे तो मेरा सर का दर्द या जिस्म का दर्द नहीं जाता है। तो मरीज को भी एक ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती है, वो खाता रहता है तो ठीक रहता है, अगर किसी और कंपनी की दिया जाता है तो नहीं होता है। तो मसला ये है कि हमारा सिस्टम की खराबी है, चाहे आप टास्क फोर्स बना दें, चाहे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इशू हो, हमारे यहाँ वो। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी तो मामला है ना, हमने तो सुना है, पता नहीं ये तासुर ठीक है या नहीं, कि जो डॉक्टर हजरात होते हैं उनको दवाइयाँ रेकमेंड करने पे एक कमीशन तय होता है, वो दवाइयों पे भी होता है, वो ब्लड टेस्ट पे भी होता है। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो डॉक्टर्स ज़रा बिजनेस बेहतर तौर पे समझते हैं, उनके तो घर में साबुन भी उनके अपने पैसों का नहीं आता। इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जाएगा? देखिए इस तासुर को सरकार बिल्कुल खत्म। तासुर क्या है, ये तो बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं, हर चीज ऐसे ही है। सही तासुर है, आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपकी बात से बिल्कुल टोटली इंडोर्स करता हूँ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत खतरनाक इंकिशाफ कर रहे हैं सर आप ऐसे। लेकिन इसको सिस्टम को ठीक करना होता है। और मैं इसी तरह से कहता हूँ कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये सिस्टम इसी तरह से तो बता रहा हूँ कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना वो अपना काम करेगी और एक सिस्टम बनेगा तो बहुत कुछ सही हो सकता है। लेकिन अगर आप ये जो सिस्टम अगर जेनरिक नेम का आप चेंज कर दें, फला कर दें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि देखिए सिस्टम में जो खराबी है उसको खत्म करें, डिपार्टमेंट को खत्म नहीं करें। आप मजीद डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट बनाते जाते हैं, वो सही नहीं रहता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हर चीज में जो लोग बहुत अच्छे, मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं करते, मेजॉरिटी लोग बहुत ही एथिकल प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छा ये डॉक्टर काम करते हैं। आप खुद तो माशाल्लाह मतलब एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मेडिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक बड़े अच्छे ओहदे पर हैं। आपके प्लेटफॉर्म ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ की है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे डॉक्टर्स जो कि जेनरिक नेम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, RX के बाद एक जेनरिक नाम लिखना चाहते हैं, उनको ज़रा फैसिलिटेट किया जाए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी NGOs भी हमने देखी है वो काम करना चाह रही है लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास वेंडर्स अवेलेबल नहीं। देखिए इसमें जो सिस्टम है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक नोटबुक भी बनाई हुई है, एक गाइडलाइन बनाई हुई है फॉर डॉक्टर्स, जिसमें ये चीजें मेंशन है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से क्या चीजें ले सकते हैं गिफ्ट के तौर पे और क्या नहीं ले सकते हैं। अच्छा। तो वो जो है वो छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही पिटी चीजें हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंपनी से हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम कंपनी से अपनी फैसिलिटीज को अवेल करें कंपनी के जरिए। नेचुरली फिर वो कंपनीज जो है वो दवाइयों की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर उसका लोड जो है एक आम आदमी पे पड़ता है। बिल्कुल एक तरह से माफिया की सूरत इन्होंने इख्तियार कर लिया। अच्छा डॉक्टर इस सिस्टम को हाँ जी प्लीज कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। अच्छा मैं आपसे डॉक्टर कैसे साहब आपसे और डॉक्टर ज़ैनुल हसनैन साहब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ
जब भी कोई मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी जब पढ़ रहा होता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो उसको तो बेसिक फॉर्मूला बताया जाता है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। तो ऐसा क्यों होता है जब वही स्टूडेंट बाहर निकल के जब प्रैक्टिस कर रहा होता है, जब वो डॉक्टर बन जाता है, उसका अपना क्लिनिक खुलता है, तो फिर वो बजाय कि वो फॉर्मूला दे वो दवाइयों पे आ जाता है, वो स्पेसिफिकली ब्रांड्स की नेम की तरफ आ जाता है। ऐसा क्या होता है? असल में इसकी बुनियादी बात जो कि मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि फार्मासिस्ट जेनरिक सिस्टम पे काम करता है और पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, मगरबी ममालिक में ख़ास तौर पे, और उसकी वजह यह है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव और पोटेंट ड्रग को प्रेफर करता है ताकि हर मरीज़ तक दवा आसानी से पहुंच सके और उसका बेहतर इलाज हो सके। चुनांचे इस हवाले से फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन काम कर रही है और हम हुकूमत से भी इस सिलसिले में ताउन चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मॉडल फार्मेसी बनाई जाए जहां पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद हों जो कि जेनरिक मेडिसन को प्रमोट करें और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जेनरिक ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें और पेशेंट केयर में उसको प्रॉपरली इंगेज करें, तो ये मसला काफ़ी बेहतर हो सकता है। दरअसल बात यह है कि दवा तो ट्रेड नेम से ही बिकती है। डॉक्टर का ये कहना होता है कि भाई, मैं आपको यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले पिछले साल कुछ एक ऐसा फैमिली मैटर था कि मुझे IVIGs की ज़रूरत पड़ी और वो IVIGs जो एक ब्रांडेड स्टोर पे जो अवेलेबल थे उनकी उस एक इंजेक्शन की कीमत 1,25,000 रुपये थी और वही जब मैंने लोकल प्राइस में मौजूद किया, लोकल ब्रांड पे जब देखा तो वो 11,200 रुपये का था। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यही सवाल डॉक्टर जैन आपसे भी है, डॉक्टर कैसे साहब आपसे भी। देखिए शफात, बात ये है कि ये बहुत अच्छा मिसाल आपने दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इसको एक रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको चेक करने की ज़रूरत है और इसके लिए बॉडी मौजूद है जो कि अपना काम करना चाहिए उनको, जैसे DRA ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये तो देखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक दवा जो है वो 1 लाख से ज़्यादा की है, उसी फार्मूले की लोकल बन रही है, तो उसमें जाहिर है कंपनी की उसके अखराजात कम लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जो प्रोडक्ट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट उसको प्रमोट करना चाहिए। एक बात उसको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हर मरीज नहीं बर्दाश्त कर सकता इतनी महंगी दवाइयाँ। बहुत शुक्रिया जी। APM के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ में डॉक्टर ज़ैनुल हसनैन साहब हमारे साथ। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये हमारी सदा है और ये हमारी दरख्वास्त है कि देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम ज़रूर बनाएं कि वो डॉक्टर्स जो कि महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बीमार है उसकी तो मजबूरी है, उसके पास पैसा हो ना हो वो कहीं से भीख मांग लेगा, अपना गुर्दा बेच देगा, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा वो मेडिसिन ख़रीदने के लिए। तो उसके लिए इतनी आसानी ज़रूर पैदा की जाए कि अगर वो महंगी दवा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सस्ता मुतबादिल भी ज़रूर लिख के दें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हर शोबे में ख्वाजा सराओं के लिए अब एक सीट मुख्तस की गई है, जबकि इसके अलावा अच्छे नंबर हासिल करने वाले ख्वाजा सरा ओपन मेरिट पर भी दाखिला हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर असफर जैदी ने जामे में दाखिले के लिए ख्वाजा सराओं के लिए अब मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद पसमानदा तबके की आला तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना है ताकि ट्रांसजेंडर्स को बतौर वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान मुआशरे में कबूल किया जाए। GC यूनिवर्सिटी में पहले ही दीगर पसमानदा तबकों के लिए खसूसी नशिस्तें मौजूद थीं और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, माजूर अफराद, अक़लियतें भी शामिल थीं। ये पहला मौका है कि अब इस यूनिवर्सिटी में ख्वाजा सराओं के लिए मखसूस नशिस्तें तश्कील दी गई हैं। बिल्कुल शफात, इससे पहले भी हमने देखा कि जैसे लाहौर में जो NC है उन्होंने भी जो अपनी कैंटीन का ठेका था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने इस तबके को भी उठा के इनको भी एम्पावर करें कि वहाँ पे जो कैंटीन है वो भी ख्वाजा सराज को रन करें। और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सराज जो कि लाइक होते हैं, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो पढ़ लिखा जाए अपने मुल्क कौम के लिए, लेकिन क्योंकि उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और इसलिए उनको जो बेहतरीन पढ़ाई के जो मौके हैं वो भी नहीं मिलते। फिर जब वो पढ़ नहीं सकेंगे तो फिर अच्छी नौकरियां शफात उनको कहाँ से मिलेंगी? एग्जैक्टली जी। और चूंकि सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, इस वजह से इस तबके के खिलाफ जो अब्यूज़ के केसेस हैं वो बार बार देखने में आते हैं।
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसा एक माहौल क्रिएट करें जिसमें ज़्यादा तादाद में ये लोग शिरकत कर सकें, ताकि वो जो एक टैबू बना हुआ है ना लोगों से इंटरेक्शन ना करने का, वो टूटे और लोगों का इनसे इंटरेक्शन हो, ताकि वो आपस की कन्फ्यूजन खत्म हो। बिल्कुल शफात, वो कन्फ्यूजन के साथ में जब वो आपके साथ पढ़ेंगे तो वो एक्सेप्टेंस ऐसे बढ़ेगी। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप उनको तालीम में अगर वो आगे नहीं आना चाह रहे तो हम उनके लिए मुख्तलिफ मौक़े ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो अपने लिए एक अच्छा, बेहतरीन और बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा सकें। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के बाद से कौमी शनाख्ती कार्ड के फॉर्म पर जिन्स का एक तीसरा कॉलम भी शामिल हो गया है और निजी तालीम इदारों के दाखिला फॉर्म्स में भी जिन्स के खाने में तीसरा शामिल किया गया है। तम सरकारी सतह पर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और हमारी दुआ यही है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो कि लिया है GCU यूनिवर्सिटी ने, तो अब ये किया भी जाए और स्पेशली वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स है वो पढ़े भी जाए, और वो लोग जो कि मुखय्यर हजरात हैं, क्योंकि शबात समहाउ ये वो लोग होते हैं जिनको उनकी अपनी फैमिली छोड़ देती है। तो तालीम पे अगर कोशिश कर सके, बहुत बड़ा सदका जारिया होता है, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आप इनकी तालीम पे इन्वेस्ट करें। जनाब, ये एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं है, इस मामले को हमें सिर्फ तालीम की हद तक नहीं, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको देनी पड़ेंगी, प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और कुछ अर्सा पहले जब हमने देखा था कि जी सरकारी महकमों में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात हुई थी, तो उसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आया था, बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए थे। खैर जनाब, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है, तो आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया, बाद रिया, अल्लाह हाफिज़।